Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you would be fine. It's chapter number 2 of your textbook, New Oxford Modern English Book 5, The Ransom of Red Chief. Ransom is basically an amount that is demanded in response to somebody kidnapped. Okay, so it's a very interesting story, students. We are going to start it from the very beginning, and we are going to discuss it in detail along with all the word meanings that are given in this text. So hold a pencil in your hands and get ready. Okay, so this is the box in which you are given with few of the words. First we will discuss them, and then we will move towards the story. Accede, buggy, counter proposition, foreclose, mortgage, prominent, provisions, scout, subjugation, surreptitiously, trickery. ठीक है? These are some of the words. Some are new words and some are maybe the words that you are familiar with. But let us discuss the meanings. Accede means to agree to a demand or request. For example, sometimes we are making some deal, so we agree to some demand, or someone who has requested us for something, we agree to it. That is called to accede, to agree. Okay, buggy is a horse drawn cart. It was in olden days. Now we have vehicles, but in olden days we have horse cart, we have camel carts. So they were basically buggy. They carry people also from one place to another. Okay, counter proposition is to make an offer made as an alternative to a previous one. It's something like we used to go to shops and we purchase something, but we do not purchase it in the first instance. We want to purchase something, but we want to bargain. Okay, so what we do, we used to say that okay, let us search some other markets also, let us search some other shops, maybe we get some other better options. Okay, so they go to other shops, and then they feel that the first offer was the best, so they return to the first shop. But when they return to the first shop, the shopkeeper says, now I will make a counter offer. Okay, that is, the previous offer is not valid anymore, and I have an alternative option, an alternative offer for you, a new offer. So counter proposition is something new offer. Okay, foreclose means to take back a property that was bought with borrowed money because that money is not being paid back as agreed. It's a term that is used while taking loans, and the people who are in touch with the bankers, they are familiar with this word, that sometimes we buy a property with borrowed money. We borrow money from the bank and then we buy some property, but in failure of paying back that money, the property is taken back. Okay, so that is called foreclose. Mortgage is a loan usually taken when buying property. Mortgage means is to keep something in return of taking some loan. Okay, prominent means something important, well known. Provisions, food, drink and equipment. Provisions means the stuff that we carry while we are going for a journey. Okay, scout, a soldier or other person sent out to investigate in secret. Scout is basically a sort of a spy who is sent to investigate or inspect for something. Subjugation is to be brought under complete control, conquered. Subjugation means to conquer something, to have hold on something. Surreptitiously, without being noticed. It means secretly, something done in secret. Okay, trickery means betrayal of trust, someone deceiving someone. Okay, someone just breaking the trust of someone and someone betraying others, that is called trickery. Okay, now move towards the story. So the story is telling something as a story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. So it's a story about kidnapping, because from the title you can
think that the ransom of Red Chief means ransom is something that is demanded in return to kidnapping someone. Okay, it's the money that kidnappers demand from the ones who have been kidnapped. Okay, so it's a story about kidnapping in which kidnappers get more than they bargained for. So we can perceive that there was something kidnappers should have tasted. Okay, so let's start. We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. Struck is the past of strike. Strike means hitting something. We were down south in Alabama. Alabama is a place. Bill Driscoll and myself. He is telling his friend's name and himself. The one who is narrating the story is telling about himself and his friend. They were where? They were in the south in Alabama when this kidnapping idea struck us. That is, they were thinking of something and suddenly they had an idea to kidnap someone. And why do they need to kidnap someone? They are telling us in the other paragraphs. Bill and me. Bill is the name of his friend. Bill and me had about $600. They had $600 and we needed just $2,000 more. They had just $600 and they need how much more? $2,000 more to buy some land in western Illinois. Okay? They wanted to buy some land and in order to buy that land, they were shot with $2,000. So they made an plan to kidnap someone, and in return to that kidnapping, they will demand for ransom of $2,000. We figured that family love is strongest in semi-rural communities. Semi-rural, semi means that is not complete, that is part or a half. Semi means not complete, and rural is a place that is in countryside, or you can say some village areas. These are called rural areas, because urban are the areas that are covered in the cities and rural are the areas that are covered in the villages. So they thought that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. Summit means the highest point of a hill. Okay, that is called a summit, a small town. So they thought that people who are living in the villages areas have a strong bond in their families. So they should kidnap from there someone, some child or someone, so that they could get this much money that they needed to buy that land. Okay, so this was the idea that struck them. Here we have few words. Struck is the past of strike. Strike means to hit something. Figured means suppose. Figured means I suppose that, सोचा मैंने और मैंने एक तखमीना लगाया, मैंने एक अंदाजा लगाया. सेमी का मतलब होता है जो चीज मुकम्मल ना हो, आधी हो या कुछ हो, उसको हम कहते हैं सेमी. रूरल उन एरियाज को कहा जाता है जो शहरों में नहीं आते. गांव और विलेजेस और छोटे शहर, टाउन्स वगैरह को रूरल कहा जाता है. कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप को. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिनकी बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, जिनका कोई कॉमन कॉज हो, उनको कहा जाता है कम्युनिटी. समिट कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल. जो किसी भी पहाड़ी का ऊंचाई हिस्सा होता है उसको कहा जाता है समिट. तो उन्होंने भी यही एक प्लान बनाया कि एक छोटे से टाउन के पास समिट में, यानी एक ऊंची सी जो पहाड़ी थी उसके ऊपर, वहां पर बैठकर वो किसी को अगवा करेंगे, किडनैप करेंगे. We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. Mr. Dorset was known for his wealth, which he made from lending mortgages and making foreclosures. The kid was a boy of 10 with freckles and bright red hair. Bill and me figured that Ebenezer would agree to pay a ransom of $2,000, but wait till I tell you what happened. अच्छा जी, यहाँ पर यह बताने लगे कि किसको उन्होंने अगवा करने का सोचा. उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचा जो इकलौता था, ओनली चाइल्ड था. किसका? एबेनेज़र डॉर्सेट का. मिस्टर डॉर्सेट कौन थे? जो अपनी जायदाद, अपनी
जो दौलत थी उसकी वजह से पहचाने जाते थे। और उन्होंने ये दौलत कैसे बनाई थी? मॉर्टगेजेस दे दे के लोगों को और फोरक्लोजर्स कर करके, यानी वो एक बैंकर थे और लोगों को उन्होंने इस तरह से लूटा था कि लोग जो उनको लोन्स पे ऑफ नहीं कर पाते थे, उनकी जितनी जायदादें उनके पास होती थी उन सब के ऊपर उनका कब्जा हो जाता था। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, 10 साल का बच्चा था। उसके चेहरे के ऊपर थोड़े थोड़े धब्बे थे, निशानात थे, बाल उसके लाल थे। तो बिल और मैंने सोचा कि एविजनर जो है हमें $2000 जरूर दे देगा, लेकिन यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं लेकिन आप इंतजार कीजिए कि दर हकीकत क्या हुआ। ये तो हमने जो सोचा था वो था, लेकिन हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन। 2 मील दूर जिस समिट के ऊपर उन्होंने सोचा था कि वहां पर उसको अगवा करके रखेंगे, कम से कम वहां से 2 मील दूर एक ट्री था जो भरा हुआ था, एक माउंटेन था जो दरख्तों से भरा हुआ था, यानी वहां बहुत सारे दरख्त थे। ऑन द रेड स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव, देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस। अच्छा, ये जो समिट वाला एरिया था जहां से उन्होंने बच्चा अगवा करने को सोचा था, वहीं से 2 मील दूर एक पहाड़ी थी और वो जो है वो दरख्तों से ढकी हुई थी, और वहीं पर एक स्लोप के पास एक गार था। उन्होंने वहां सोचा था कि हम खाने पीने की चीजें वहां पर रखेंगे, यानी जितने दिन उसको अगवा करके रखेंगे वहां पर हमें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा तो हम वहां पर स्टोर कर लेंगे। वन इवनिंग वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस। द किड वॉज इन द स्ट्रीट throwing rocks at a kitten on the opposite fence. अब एक दिन वो उसके घर के पास से गुजरे, बच्चा जो था स्ट्रीट के अंदर गली में एक पत्थर फेंक रहा था एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे पर, बिल्कुल सामने ही जो वहां पर फेंस था, जो जंगला लगा हुआ था वहीं पर। Hey, says Bill, would you like some candy? तो अब बिल ने यहाँ पर उस बच्चे को क्या ऑफर किया? कुछ कैंडीज ऑफर की। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, और रिटर्न में उसने क्या किया? बच्चे ने उसके ऊपर बॉल फेंक दी, एक पत्थर फेंक दिया। That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. उसने एक लड़ाई शुरू कर दी, बच्चे ने, बहुत शरीर बच्चा था, उसने लड़ाई शुरू कर दी, मगर आखिरकार हुआ क्या? हमने उसको दबोच लिया, बगी में बिठाया और गार की तरफ रवा दवा हो गए। After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. और उसके बाद जब अंधेरा छा गया तो मैंने वो बगी वापस कर दी जहां से मैं उठाकर लाया था, जहां से मैंने उसको हायर किया था, ठीक है, और मैं वापस उस गार में आ गया जहां हम बच्चे को लेकर गए थे, जहां हमने प्लान बनाया था। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रूजेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स। अच्छा, अब जो बच्चा था उसने उसके चेहरे पर खूब निशानात मार दिए थे लड़ाई झगड़े के अंदर, उसने उसको खूब बच्चे ने अपने हाथ से उसको नोच डाला था, तो वो उन्हीं सबको जो है वो सही करने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं सबको वो गौर से देख रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, उसके चेहरे पे, उसके पाँव पे, सब जगह पर ब्रूजेस यानी इंजरीज आई थी। ओके, विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु इज हर्टेड। विक्टिम किसको कहते हैं? वो शख्स बेचारा जो किसी के जुल्म का निशाना बना हो, ठीक है। प्रोमिनेंट इज इम्पोर्टेंट, फेमस कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट को कहा जाता है। प्रोमिनेंट, फोरक्लोजर्स, टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल। मॉर्टगेजेस कहते हैं सिक्योरिटी ऑन अ लोन, यानी आप जब लोन लेते हैं तो आपकी कोई कीमती चीज बैंक अपने पास रखता है एज अ सिक्योरिटी कि अगर आप लोन पे ऑफ नहीं कर सके तो वो चीज आपकी बेचकर वो अपने पैसे को रिकवर करेंगे। रैंसम मीन्स प्राइस ऑन रिलीज, किसी को अगवा करने के बदले में जो तावान मांगा जाता है, जो पैसा क्लेम किया जाता है, जो डिमांड किया जाता है, उसको कहते हैं रैंसम। रेयर कहते हैं बैक साइड को, प्रोविजंस कहते हैं सप्लाई को यानी खाने पीने का सामान, बगी कहते हैं कैरेज को, इट कुड बी अ कैमल कार्ट और अ हॉर्स कार्ट, इवेंचुअली कहते हैं इन द एंड, आखिरकार। हायर मीन्स टू अपॉइंट, जैसे कि हमारे यहाँ हायरिंग और फायरिंग होती है ऑफिसेस के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से हायर का मतलब होता है किसी को अपॉइंट करना, किसी चीज को लेना। ब्रूजेस कहते हैं इंजरी को, कोई जख्म आ जाना। ओके, नाउ टर्न ओवर द पेज। देयर वाज अ fire burning in the cave and the boy was sitting by it with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me and says, "Ha, cursed pale face, do you dare to enter Red Chief's camp?" "He's all right now," says Bill. "We are playing Red Indian. I'm old Hank, Red Chief's captive, and I'm to be scalped at daybreak." Ouch, that kid can kick hard. So you see, this is Bill and he is having bruises on his face and his leg, and the boy is having fun time. He is having 2 of the feathers in his red hair. Okay, so here he is telling us that कि वहां पर जब वो केव के अंदर गया अपनी बगी वापस करके, तो वहां पे उसने देखा कि आग जल रही थी, बच्चा आग के पास बैठा हुआ था
और 2 बजर्ड टेल फैदर्स उसने अपने सर में लगाए हुए थे, एक स्टिक ली हुई थी और स्टिक को मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा, एक कर्स्ड कहते हैं जिसको बद्दुआ दी गई हो, बुरे अल्फाज कहा जाता है, पेल फेस पीले चेहरे वाले, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप। वो कुछ गेम खेल रहा था और यहाँ पर उसको कहने लगा कि तुम रेड चीफ के कैंप में दाखिल होने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। ही इज ऑल राइट नाउ। तो जवाब में बिल ने क्या कहा, वो अब ठीक है, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं, मैं ओल्ड हैंक हूं और रेड चीफ का कैप्टिव हूं। कैप्टिव मीन्स रेड चीफ ने मुझे कैद कर लिया है, उसने मुझे पकड़ लिया है, यानी एक गेम खेल रहे हैं हम लोग जिसके अंदर मैं इसका कैदी हूं। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक, और मुझे जो है वो दिन के वक्त में गंजा कर दिया जाएगा। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड। और उसके बाद फिर उसने अपने जख्म पर जो है वो हाथ रख के एक आवाज निकाली और कहा कि इसने बड़े जोर से मुझे मारा है। सो दिस वॉज ऑल द सीन दैट वॉज हैपनिंग at that moment. That boy seemed very happy. The fun of camping out had made him forget that he was a captive. He immediately named me Snake Eye the Spy and announced that I was to meet my end the next day. अच्छा जी, बच्चे को कुछ नहीं पता, वो तो समझ रहा है खेल कूद हो रहा है, उसको इस बात का कोई इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। वो तो बड़ा इंजॉय कर रहा है यहाँ पर और बड़ा खुश है। और उसके लिए ये एक कैंपिंग है, जैसे कि जो है वो एक कैंप लगाया जाता है, उसमें एंजॉय करने के लिए हम जाते हैं, तो वो भी इसको कैंपिंग की तरह से ले रहा है। और वो भूल चुका है कि उसको कैद किया गया, उसको पकड़ के लाया गया है। और वो फौरन उसने मुझे क्या नाम दे दिया, स्नेक आई स्पाई, जासूस का नाम दे दिया मुझे, और कहा कि तुम्हारा जो मामला है वो कल देखा जाएगा। देन वी हैड सपर, हमने शाम का नाश्ता किया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, उसने अपना मुंह जो है गोश्त से भर लिया। ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड, मुंह में खाना भर के और उसके बाद बातें करने लगा। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, और बातें क्या कर रहा था वो, आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, इट्स फन, बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वाज 9 लास्ट बर्थडे, आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वर्ड्स, आई वांट सम मोर ग्रेवी, डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो। ठीक है, वो इस तरह की बातें कर रहा था। ठीक है, मैंने कभी इससे पहले कैंपिंग नहीं की, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। मेरे पास एक पेट हुआ करता था, मैं पिछली सालगिरह में 9 साल का था, यानी मैं अब 10 साल का हो गया हूँ। क्या रेड इंडियंस असली में भी होते हैं जंगलों में? मुझे थोड़ी सी और ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा और सालन चाहिए। और क्या ये जो दरख्त चल रहे हैं इनकी वजह से हवा चलती है? और आगे कहने लगा, वी हैड 5 पपीज, हमारे 5 पपीज थे। व्हाट मेक्स योर नोज सो रेड हैंक, मुझे कहने लगा कि तुम्हारी नाक क्यों इतनी लाल हो रही है। माई फादर हैज लॉट्स ऑफ मनी, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या सितारे गर्म होते हैं। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज, क्या बैल कुछ आवाज निकालते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, और ये जो ऑरेंज होता है ये गोल क्यों होता है। पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कैंट, एक तोता तो बोल सकता है, आवाजें निकालता है, लेकिन मंकी और फिश क्यों नहीं बोल सकता। तो वो इस तरह की बेवकूफाना और बच्चों वाली बातें कर रहा था। ठीक है, every few minutes he would remember that he was a red Indian and would let out a war whoop that made old Hank shiver. That boy had been terrorized from the start. अच्छा जी, यहाँ पर वो बच्चे को ये चाह रहे थे कि वो बच्चा रिलैक्स फील करे, उनको परेशान ना करे। इस चक्कर में ये बात उनके लिए उल्टी पड़ गई थी। वो हर थोड़ी देर के बाद बच्चे को याद आ जाता था कि मैं तो रेड इंडियन बना हुआ हूँ, और वो अपने उसी अंदाज में बात करना शुरू कर देता था। हाथ में उसकी डंडी थी, मारना पीटना शुरू कर देता था। और उसकी वजह से जो ओल्ड हैंक था, जो ओल्ड हैंक कौन बना हुआ था, बिल बना हुआ था ओल्ड हैंक, तो वो जो है कपकपाने लगता था और उसने बिल को बुरी तरह से खौफजदा कर दिया था। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम, तो मैंने कहा बच्चे से, क्या तुम घर जाना चाहोगे। ओह व्हाट फॉर, ही सेज ही, I don't have any fun at home. I hate school. I like camping. You won't take me home, Snake Eye, will you? तो बच्चे ने फौरन कहा, भाई तुम मुझे घर क्यों लेके जाना चाहते हो? मैं तो घर नहीं जाना चाहता, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, और मैं घर पे बहुत बोर होता हूँ, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, तो मुझे घर क्यों ले जाना चाहते हो, Snake Eye? Not right away, says I. Yay, says he. I never had such fun in all my life. तो बच्चा बहुत खुश हो गया, यहाँ पर उसको बहुत मजा आ रहा था। At about 11 o'clock, we spread down some white blankets and went to bed. तो 11 बजे हमने क्या किया, हमने दरियां बिछा दी, अपने बिस्तर बिछा दिए हमने, और हम सोने चले गए। रेड चीफ kept us awake for 3 hours. लेकिन ये जो बच्चा था इसने हमें 3 घंटे जगा कर रखा, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching.
At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. तो जी हुआ ये कि बच्चा जो है इनको तंग करता रहा, लेकिन आखिरकार मैं तो सो गया और उसके बाद ख्वाब में भी मुझे यही नजर आता रहा कि मैं किडनैप हो गया हूँ, मुझे कोई पकड़ कर ले गया है और वहां पर मुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ा गया है और मेरे सर के ऊपर एक रेड बालों वाला पायरेट किसको कहते हैं, जो जहाजों की, पानी के जहाजों में जो लोग चोरी करते हैं उनको कहा जाता है. लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. बजर्ड कहते हैं वल्चर वैम्पायर को. आपने गिद्ध देखा होगा, या वो जो इंसानी गोश्त खाते हैं उनको कहा जाता है खूंखार को बजर्ड. कर्ज कहते हैं बुरे अल्फाज को. पेल कहते हैं कमजोर, जो पीला पड़ गया हो कमजोरी की वजह से, उसको कहा जाता है. डेयर कहते हैं चैलेंज देने को. कैप्टिव, केज्ड, चेंज. कैप्टिव कहते हैं किसी को कैद कर लेने को. स्कैल्प्ड का मतलब बेहेडेड, शेव. इसके दोनों मतलब होते हैं गंजा कर देना या सर तन से जुदा कर देना. स्पाई कहते हैं सीक्रेट एजेंट को, जो जासूसी करता है उसको. सपर इज द इवनिंग मील रिफ्रेशमेंट. शाम के वक्त जो कुछ हम खाते हैं, चाय पीते हैं, उसको सपर कहा जाता है, जो हल्का फुल्का खाना होता है. ऑक्सन इज द मेल ऑफ अ काउ. वूप मीन्स लाउड क्राई ऑफ जॉय. खुशी से जो हम चीखते हैं उसको हम वूप कहते हैं. शिवर कहते हैं कपकपाने को. शिवरिंग मीन्स शेकिंग, वाइब्रेटिंग. टेरराइज्ड मीन्स टू गेट स्कैर्ड, फ्राइटेंड, खौफजदा हो जाना. स्प्रेड डाउन मीन्स टू ड्रॉ ऑन अ सरफेस, कोई चीज बिछाना. कैंपिंग इज सेटिंग अप कैंप. स्क्रीचिंग मीन्स टू शाउट. क्रैकल मीन्स साउंड ऑफ शार्प साउंड, दैट इज शार्प साउंड इज कॉल्ड क्रैकल. ट्विग इज स्प्रे, स्टिक, ब्रांच. ट्विग कहते हैं शाख को, कोई डंडी, कोई डंठल, बारीक सी जो डंडियां होती हैं उनको कहा जाता है ट्विग. रसल मीन्स स्विश, विस्पर, आहिस्ता से कहना, कान में कहना और मर्मरिंग करना. आउटलॉज का मतलब बैन, किसी चीज को बाइकआउट कर देना, बिल्कुल किसी चीज पर पाबंदी लगा देना. अप्रोचिंग, गो अप टू. अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचना. फेरोशियस मीन्स वाइल्ड, क्रूल, बहुत खतरनाक. पायरेट कहते हैं जो समंदर के अंदर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जो जहाजों के अंदर लोगों को परेशान करते हैं, उनको कहा जाता है. नाउ कम टू पेज नंबर 17. Here you can see in the picture one of the man is sleeping and the other is awakened. He is the one who is narrating the story and he is his friend, and this is the boy who is trying to threaten this man Bill. Just at daybreak I was awakened by awful screams from Bill. You can see that the person who is narrating the story is sleeping here. दिन का उजाला जैसे ही होने लगा वैसे ही मेरी आवाज बिल के चीखने चिल्लाने की वजह से खुल गई. I jumped up to see what the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest, holding him by the hair. In his other hand he had the sharp knife and he was seriously trying to take Bill's scalp as he had promised the evening before. जब इसकी आंख खुली तो इसके बड़े खौफनाक मनाजिर देखे. बच्चे के हाथ में वाकई में चाकू था और ये इसका सर तन से असली में जुदा करने जा रहा था, जैसा कि इसने पिछली रात कहा था कि मैं कल इसका सर तन से जुदा कर दूंगा. वो तो एक खेल था, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ असली में होने जा रहा था. I got the knife away from the kid and made him lie down again. But from that moment, Bill's spirit was broken. He lay down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. अब क्या हुआ, बिल के अंदर तो खौफ बैठ गया कि भाई ये तो मुझे असली का मुजरिम समझ रहा है और ये तो मेरा सर, अगर मेरी आंख लगी तो सर तन से जुदा कर देगा, ये तो मेरे साथ बड़ा मसला हो जाएगा. उसके अंदर एक खौफ बैठ गया और उसने इस खौफ से आंखें ही नहीं झपकी जब तक कि वो बच्चा हमारे साथ रहा. Ain't it awful, Sam? No one will pay money to get a little imp like that back. His parents will, says I. और बिल इतना खौफजदा था, उसने कहा था सैम किसका नाम है, जो स्टोरी में अपने आप को आय करके नरेट कर रहा है, ठीक है, जो स्टोरी सुना रहा है उसका नाम सैम है. इस दफा बिल ने उससे कहा कि सैम ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, कौन इसको वापस लेने के लिए पैसे देगा, इससे तो सब जान ही छुड़ाना चाहेंगे. तो मैंने क्या कहा, नहीं इसके पेरेंट्स देंगे. आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड. अब जिस समिट के ऊपर ये लोग थे, जहां पर बहुत सारे दरख्त थे माउंटेन के ऊपर, जिस गार के अंदर इन्होंने पनाह ली हुई थी, वहीं पर मैं ऊपर गया ताकि जायजा ले सकूं इर्द गिर्द का कि वहां पर क्या हालात हैं. ओवर टूवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, बट व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल लैंडस्केप. परहैप्स, सेज आई टू माई सेल्फ, इट हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड. तो मैं जब वहां पर ऊपर चोटी पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि वहां तो लोग तलाश में जो है वो घूम रहे होंगे कि एक बच्चा गुम हो गया है, तो सब जो है क्योंकि
टाउन में तो लोग एक दूसरे की बड़ी परवाह करते हैं, तो वहां पर भी वो बच्चे की परवाह करते हुए सब जो है वो इस तलाश में होंगे कि बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ा तो वहां तो मंजर ही कुछ और था। तो मैंने अपने आप से कहा कि शायद अभी तक ये बात फैली ही नहीं होगी कि कोई बच्चा गुम हो गया है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. इस बार इससे भी ज्यादा खतरनाक जो है वो चीज देखने को मिली। इस मर्तबा उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कोकोनट था, और एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जैसा कि कोकोनट हो, और वो उससे उसका सर, बिल का सर फोड़ने के लिए जा रहा था। He put a red hot boiled potato down my back, explained Bill, and then mashed it with his foot, and I hit him. तो बिल ने क्या बताया कि भाई इसने एक लाल सुर्ख गरम किस्म का बॉइल्ड पोटैटो मेरी पीठ पे रखा और अपने पाँव से उसको कुचल दिया, मैश कर दिया। तो फिर मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट। आई विल फिक्स यू, सेज द किड टू बिल। ठीक है, अच्छा जी। तो अब क्या हुआ कि मैंने वो पत्थर बच्चे के हाथ से लिया और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। तो किड ने बिल से क्या कहा कि मैं तुम्हारे मामले को सही कर दूंगा। बाय एंड बाय बिल कम्स डाउन एंड सेज, सैम यू वोंट गो व्हेन लीव मी हियर अलोन, विल यू। अब जो है वो बिल इतना खौफजदा हो चुका था कि उसने सैम से कहा कि प्लीज सैम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled. अब मैं बाहर आया, मैंने बच्चे को जोर से जो है वो उसको झंझोड़ा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। If you don't behave, says I'll take you straight home. Now be good. अब मैंने उसको धमकाया कि अगर तुमने अच्छी तरह बिहेव नहीं किया तो तुम्हारी कैंपिंग वैम्पिंग सब खत्म, मैं तुम्हें घर वापस छोड़ाऊंगा। तो आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, और मैंने फिर दोनों को हाथ मिलवाया और उनको ये बताया कि अब कोई उनके दरमियान में लड़ाई नहीं है। Then I told Bill aside and told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. मैंने उससे कहा कि मैं जरा 3 मील दूर आगे जाकर ये पता लगाकर आता हूँ कि इस किडनैपिंग की वजह से हालात क्या हैं, यानी लोग तलाश भी कर रहे हैं उस बच्चे को या नहीं, और उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखवाई है, मतलब कोई इसकी वजह से हलचल पैदा हुई है या नहीं। You know, Sam, says Bill, I have stood by you in earthquakes, fire, floods and cyclones. I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. अब बिल कहने लगा, वो इतना खौफजदा हो चुका था, उसने कहा सैम से कि सैम देखो, मैं तुम्हारे साथ कितने मुश्किल हालात में हमेशा साथ खड़ा रहा, मैं कभी नहीं घबराया। हाँ, लेकिन आज जब से हमने इस बच्चे को किडनैप किया तब से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। यू वोंट लीव मी लॉन्ग विद यू, विल यू। तो तुम मुझे अपने आप से ज्यादा देर के लिए दूर नहीं करोगे, प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। So let's discuss some of the words. Awakened means to wake up, जाग जाना. Awful, something disgusting, evil, बहुत बुरी कोई चीज. Spirit कहते हैं soul यानी रूह को. Ain't का word जो है वो एक contraction है जो is not की जगह पर भी आता है. Are not, has not, बहुत सारे उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। लैंडस्केप कहते हैं किसी सीनरी को, बड़े खूबसूरत नजारे को। थ्रेटन, वार्निंग, टू हार्म, किसी को धमकी देना। स्मैश मीन्स टू ब्रेक, तोड़ देना। पैच्ड अप, एडजस्ट, सेटल कराना। बाय एंड बाय, फाइनली, आखिरकार। स्ट्रूटेड मतलब टू वॉक विथ प्राउड, सीना बाहर करके जो हम बड़े चौड़े करके घूमते हैं फखर से, उसको कहा जाता है स्ट्रूटेड। I'll be back soon, says I. You must keep the boy amazed till I return. मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तुम तब तक बच्चे को खुश रखो. Let's write the letter to Mr. Dorset demanding the ransom and how it should be paid. अब हम एक खत लिखते हैं मिस्टर डॉर्सेट को, इस बच्चे के अब्बू को, कि उनको हमें पैसे किस तरह देने हैं और कहाँ देने हैं. So here part 1 has been completed, students. I hope you would have enjoyed. For the explanation of the second part, you stay tuned and please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new to the channel, and take care. Allah Hafiz.